Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, I will describe you very important and crucial concept regarding the health and diseases. That is, the concept is why do we fall ill? Listen, why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? It is very important topic and last concept and last topic for class 9. Listen carefully. It is all about the matter of health and diseases. So first of all, we need to explain the health rather than the diseases. Health. Without health, nothing is possible. Health is actually swag of our body. Health is total earning of our lifespan. If you have a poor health, you don't get anything else in your life. Suppose that you are going to study and you are not well. You are not well in respect of the health. Then do you read properly? No. If you are going to play cricket and you are unhealthy, it is possible to play cricket? No. That's why health is wealth. That's why many our forefathers has taken out a concept that is health is wealth. Health is all about learning of our lifespan that protect you from the different kinds of diseases. Later I will describe you what is actually form of diseases, but health is all about total earning of life that protect you from diseases and make you tension free from medications, from other problems. That is very essential. How can you define the health? The total well-being with respect of physical, physiological, social, economical, environmental is known as health. Listen, the total well-being, the total well-being with respect of फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल. हम यहाँ पे दो ही वर्ड यूज कर रहे हैं, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल. हालांकि अगर आपका हेल्थ सही है तो आपकी इकोनॉमी भी सही रहेगी, ये सबको पता है. लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी के लैंग्वेज में हम एक्सटर्नल और इंटरनली हम अपने आप को फिट पाते हैं, तो ये मानते हैं हमारा हेल्थ ठीक है. टोटल वेलबीइंग ऑफ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल. ठीक है, तो ये इस रिस्पेक्ट में ये एक्सटर्नल प्रोसेस हमारा शरीर ठीक ठाक है, कहीं एक्ने नहीं है, कहीं चोट मोच, कहीं घाव नहीं है, ठीक ठाक है. फिजिकल. फिजियोलॉजिकल में इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसिडिटी नहीं है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन नहीं है, कहीं से कुछ हमारा बुखार नहीं है, ये सब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, वो सब ठीक ठाक है. हेल्थ. द टोटल वेल-बीइंग विथ रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज in our body is known as health. Keep in mind. I hope your concept regarding health is clear. ठीक है, हम अपना हेल्थ खुद से सही करते हैं. हमारा पैरामीटर्स है कि हम अपने घर के आसपास साफ सफाई करते हैं तो हमारा हेल्थ ठीक ठाक रहता है. बॉडी की सफाई करते हैं तो पर्सनल एनवायरनमेंट की सफाई करते हैं तो हमारा सराउंडिंग ठीक ठाक रहता है. ठीक है. Significance of health is your next topic. Significance of health. Significance. हेल्थ से हमको क्या क्या प्रॉफिट मिलता है हमको पता है. फिजिकल प्रॉफिट, पहले ये चेक करते हैं कि फिजिकल हमको क्या प्रॉफिट मिलता है. ठीक है, तो फिजिकली हम क्या गेन करते हैं हेल्थ से. सिग्निफिकेंस क्या? Physical fitness. This is the first earning of health. If your health is good, it means you are physically good. ठीक है. Economical. Economical fitness means, as you all know, if you have any problems, if you are under medication,
if you are having different kinds of therapeutics and doctor consult regularly, then there is a lot of money is going on from your family. It means you may lose a good amount of money from your save account. It is not good for your economy. That is the problems of low economical values. Keep in mind. So economical problems, I hope you have well familiar with the how do our economy affect the health और how do our health affect the economy. ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा. पैसे से सब कुछ होता है. अगर हेल्थ सही है तो आपका पैसा बचा रहेगा. कैसे बचा रहेगा इसमें कोई डाउट नहीं. ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूं. नेक्स्ट द environmental fitness. If you are healthy, it means your surrounding is healthy. भाई आप साफ सुथरे हैं सही ढंग से, तो सीधी सी बात है आपकी आप काफी दिनों से बीमार नहीं पड़े. इसका मतलब क्या है? घर में साफ सफाई है, सराउंडिंग ठीक है, आपके एनवायरनमेंट में ठीक है. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ रहे हैं जिससे हमको हेल्थ से डायरेक्ट प्रॉफिट मिलता है. ठीक है, तो उसको आप समराइज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा. नाउ बैक टू द डिजीज. ठीक है, नाउ द डिजीज. Disease and health are inversely proportional to each other. इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए. Disease is inversely proportional to health. हालांकि ये सब कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स या साइंस के दूसरे ब्रांच फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, लेकिन बायोलॉजी के लिए कॉन्सेप्ट देने का मतलब ये है कि डिजीज अगर प्रॉब्लम्स में है तो आपकी हेल्थ डाउन होती चली जाएगी, और हेल्थ आपका ठीक ठाक है तो डिजीज आपका क्या हो जाएगा? डाउन होता चला जाएगा. मीन्स पहला कॉन्सेप्ट डिजीज का यही है, डिजीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेल्थ. सो इफ यू वांट टू अ हेल्दी लाइफ, यू शुड मेक योर बॉडी डिजीज फ्री, यू शुड मेक योर एनवायरनमेंट डिजीज फ्री, you should make your family disease free. That is key concept regarding the disease and health. Now back to the meaning of disease. Listen. Dis means comfort and ease. Ease means against. Dis means comfort and ease means against. Anything that make you anything that make you uncomfort is known as disease. हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे फैमिली के हेल्थ के लिए या हमारे सराउंडिंग के हेल्थ के लिए जो भी फैक्टर्स है जो हमारे बॉडी को, हमारे सराउंडिंग को इफेक्ट कर सकता है, हेल्थ में काउंट किया जाएगा. ठीक है, डिजीज में काउंट किया जाएगा. ठीक है, ये प्रॉब्लम आपका रहता है. तो डिजीज का मतलब मैंने समझा दिया. This means comfort, ease means against. Anything that make you uncomfortable called disease. Any factors that make you uncomfort, any factors that make you uncomfort called disease. ठीक है, डिजीज आर दोज काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स और द कंडीशन बाय विच योर बॉडी गेट अनकंफर्ट कॉल्ड डिजीज. इट इज द कंडीशन व्हेन बॉडी गेट और फील अनकंफर्ट कॉल्ड डिजीज. मीन्स हम खड़े हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, डिजीज. बोल रहे हैं अनकंफर्टेबल फील और डिजीज. सेम थिंग्स, एनी कंडीशन बाय विच यू फील अनकंफर्टेबल, दैट इज नोन एज डिजीज. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ डिजीज. कीप इन माइंड द टाइप्स ऑफ डिजीज नीड टू
understand by you. Now back to the types of disease. Types of disease. There are so many criteria that we can categorize the disease. First criteria is disease on the basis of durability or duration. Listen, disease on the basis of duration in body. First criteria is disease on the basis of duration. ड्यूरेशन, कुछ डिजीज बहुत लंबे समय तक बॉडी में रहता है या फिर मरने के साथ ही खत्म होता है, कुछ डिजीज जो है शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है जो कुछ समय दवाओं का या मेडिकेशन पे रहने पे खत्म होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीज। लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीज के लॉन्ग ड्यूरेशन की मैं डिस्कस करता हूँ, डिजीज के लॉन्ग ड्यूरेशन की मैं बात करता हूँ। लिसन, that is known as chronic disease. Chronic लंबे समय तक चलने वाले डिजीज को बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। फॉर एग्जाम्पल एड्स, कैंसर, फाइलेरियोसिस, पोलियो। And next will be your homework, next will be your assignment that you need to write what types of disease that are available in our society from long time, and also infected person may suffer since long times or may eliminated after death of the body. Means ये सब बीमारियां बॉडी के खत्म होने के साथ ही खत्म होती हैं, बॉडी का डेथ होने के बाद ही खत्म होती हैं। फाइलेरियोसिस में क्या होता है, पैर फूल जाता है, हाथ फूल जाता है, और वो एक तरह का नीमेटोड की वजह से होता है, जिसको आगे की क्लास में समझाएंगे, आईसी में समझा देंगे, वुचेरेरिया बैकक्राफ्ट टाइप। ठीक है, पोलियो वायरस की वजह से होता है, इसके वैक्सीन वगैरह हैं, अगर वैक्सीन टाइमली लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पैरालिसिस हो जाता है और क्रॉनिक पैरालिसिस होते हैं। ठीक है, एड्स और कैंसर ये तो आप जानते ही हैं, एड्स वायरल डिजीज है, HIV की वजह से होता है, कैंसर ये फिजिकल, फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हमारे बॉडी में, जिससे सेल, बॉडी का सेल में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है और वो लाइफ टाइम चलता है और कुछ समय के बाद आदमी की डेथ होती है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो गया, ड्यूरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन देयर आर टू टाइप ऑफ डिजीज। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, on the basis of transmission there are two types of disease. First, communicable disease, and second is non communicable. Communicable, and second one is non communicable. Communicable disease, that is known as infectious disease. And that is known as non-infectious. Listen, infectious disease that can transmit from one person to another person. Infectious disease are those kinds of disease that can transmit from one person to another person. For example, COVID-19, कोरोना, एक पर्सन इन्फेक्टेड है, दूसरा पर्सन इन्फेक्टेड हो जाएगा। ऐसे ही टाइफाइड, जिसको हाउस फ्लाई एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फूड को कैरियर बना के ले आते हैं। मलेरिया, ये सब आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं समझा दूंगा, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल के बारे में डिटेल, बट आपको लिटिल नॉलेज इसी वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। कम्युनिकेबल, द डिजीज दैट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नॉन कम्युनिकेबल, द डिजीज दैट कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज। डायबिटीज अगर किसी को है, ब्लड शुगर है, उसके बगल में हम खड़े हाथ मिला रहे नहीं होगा। ठीक है, हेडेक, आर्थराइटिस, तो ये प्रॉब्लम्स उन लोगों को होते हैं जो स्ट्रेस या फिर फिजिकली फिट नहीं रख पाते अपनी बॉडी को। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्क्राइब यू वॉट एवर द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल disease, what are the factors of communicable and non-communicable disease, and how our body get affected by communicable and non-communicable diseases. Keep in mind, this is the last portion of the 9th class, because session 2020-21 the
biodiversity chapter is eliminated from our syllabus, from the biology syllabus. So this one will be the last chapter, and this will be the first topic of the last chapter. Thank you.